So good evening and welcome to all participants in today's very unique session, which is having a unique name also. Stop before you stop your SIP. So before going into the session directly, I would like to wish good health and enormous wealth to all the participants present in this seminar, in this special auspicious day of Eid. So I am very thankful to DSP Asset Management Company also for keeping some time aside for this event. And from DSP side, we are having Mr. Deepak Shetty and Mr. Amit Grover. Both are very veteran into this Indian equity market and, to be precise, Indian mutual fund industry. So if I introduce both of them, so Deepak Shetty is having long 13 years financial market experience, and out of that 13 years, last 12 years he is in DSP Mutual Fund, and he is the strategic manager for NJ India Invest Private Limited. And with that, we are having Mr. Amit Grover, who is the speaker of the evening also. Mr. Amit Grover is also having enormous experience in Indian equity market, and his total experience in Indian equity market is around 15 years. And prior to DSP, he was associated with quite reputed other mutual fund houses also, like Sundaram and IDFC. And prior to that also, he was associated with Standard Chartered Bank and HSBC Bank. So I am 100% sure that both of them will take us through a very good journey through their today's session. And to start the session, I would like to invite Mr. Deepak Shetty. So Deepak sir, if you can come forward and start the session. Thanks Kaushik bhai, and thank you so much for this opportunity. I hope we'll solve a lot of queries of your clients who are stopping their SIPs and why one should be there in the equity investments and why one should continue with their SIP. So let me thank NJ for this opportunity, and to you also, and thanks for your introduction. And let's start the session with Amit. Amit, you can start with. मैं एक चीज पहले एक बार बाकी सब अमित भाई, good evening to you also. Yeah, good evening. So all the participants, if you are having any query, so in between also you can put your query. We will take your query separately in the end of the session. और अगर आप अभी नहीं लिख रहे हो तो आप बाद में भी अपना query लिख सकते हो. तो all put together we will do a separate question answering session in the end of the session. Thank you, Amit bhai. You can start. Perfect. Good evening to all, and thanks for logging in for a very interesting session. जिसका नाम है, so I'll do the session in a combination of Hindi and English. हम लोग काफी लोग English और हिंदी के combination में सुनते और समझते हैं. So the entire conversation will be in a combination of both. The topic is very interesting. जो डर गया, I have kept a blank behind that. The answer is you figure it out. कहाँ डरना important है और कहाँ डरना नहीं चाहिए. You decide so that you can have a good financial well-being also and a health well-being also. Let me start with the first hard reality. The hard reality is, unfortunately, I would use the word unfortunately, in the last 4-5 months, we have seen many investors stopping their SIPs. And when I say stopping their SIPs, when we did a simple research trying to figure out what are the prime reasons ये अपनी SIP बंद क्यों कर रहे हैं, 4 reasons basically बाहर आते हैं. The first main reason is that in the last couple of years, कुछ सालों से नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं इक्विटी मार्केट में. एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं या लो रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से क्लाइंट्स आर स्टॉपिंग देयर एसआईपी. सेकंड रीजन व्हाई क्लाइंट्स आर स्टॉपिंग देयर एसआईपी is because unfortunately when they listen to media, whether it's CNBC, Economic Times, or any media which comes across, unfortunately the news is very negative. Whether they're talking to their friends, people in business, their colleagues, everybody is talking about an environment which is basically of fear. And that's the reason in this fear environment, in this negative environment, people are stopping their SIPs. Third reason why people are stopping their SIPs is also because somewhere the faith itself has got broken. उन्हें लगता ही नहीं है कि अगले आने वाले कुछ सालों में इक्विटी में पैसा बन सकता है, because they feel the economy is going through a tough phase. How can one make money in equity market? And lastly,
which is actually an unfortunate thing, is that in some cases, some people have lost their jobs. And if in case there is no income, that's why they have stopped their SIP, which is a genuine reason. But in some cases, their incomes have come down. In some cases, there have been job cuts or salary cuts of 5%, 10%, 15%, or 20%. Because of which salary cuts have taken place, they are thinking, let me stop my SIPs because my salary has come down. These are the 4 primary reasons why people are actually stopping their SIPs. Let me deal one reason able to understand, and you're able to deal with every problem which you are facing right now. Let me start by introducing equity to you. The problem is in the daily noise and daily return calculation, unfortunately, we forget what equity is. There are basically primary three asset classes: equity, fixed income, and gold. I will keep real estate aside for a time being, but primarily there are 3 asset classes: fixed income and gold. What is equity? Sometimes we forget about that. Basically, we all know अमीर बनने के 2 ही तरीके हैं, या आप खुद का बिजनेस या किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करो. And what are these businesses I'm talking about? Honestly, whatever expense I do is nothing but a profit for somebody else. And all these companies and businesses are in front of me. When I look at the wall, I can see Asian Paints, I can see Nerolac. When I look at the wall further, I can see Cement, I can see ACC, I can see Ultratech. When I look at my slippers, I can see Relaxo, I can see Bata. When I look at the fan above, I can see Cromptons, I can see Havel, I can see Bajaj Electric. When I look at the AC around, I can see either Blue Star or Voltas. Right from getting up in the morning, when I brush my teeth, I see Pepsodent or Colgate, HUL, Hindustan Liver companies, or Procter & Gamble companies. When I drive my car, I can see Maruti, Tata Motors, Mahindra. When I drive a two-wheeler, I can see TVS, Bajaj, or Hero. Even in an automobile, I can see auto ancillaries. I can see batteries, Amar Raja, Exide. When I have Maggi, I can see Nestle. When somebody has milk, the baby's milk, I can see Nestle over there also. When I go to a bank, I can see HDFC, ICICI, Kotak, SBI. When I even fall sick, I can see Sun Pharma, Cipla, Lupin, Ipca Laboratories. When I take some loan, I can see microfinance companies and NBFCs like Bajaj Finance. Even when my son is playing with toys, I can see Hamleys, which is nothing but a Reliance industry company. Right now, I'm using technology. I can see Infosys, TCS, Tech Mahindra. Honestly, everything we use is basically these are companies and businesses which are listed out over there. What is equity? Equity means basically investing into companies, investing into businesses. And we all know this country is approximately 130 crore population. It's a growing country. People have aspirations. People want to grow. So there are companies which will make profit. It's very simple. When you invest into these good companies over a longer period of time, as these companies are growing, honestly, so technically, when I invest into Reliance Industry, Mukesh Ambani is working day in, day out. Who is I am benefiting? When I see HDFC, I can see Deepak Parekh working day in, day out, 100 times, 1,000 times more than what I am working. Who is benefit? Because since I am also an investor in HDFC, even I benefit. This, in simple language, is what is called as equity. What is equity? Equity is simply investing into businesses and having faith that businesses over a longer period of time create wealth. It's as simple as that. But unfortunately, I would use the word unfortunately, problem happens that we get so caught up कि डेली रिटर्न्स कितने बन रहे हैं, मार्केट में इमोशंस क्या चल रहे हैं, मार्केट में स्टोरी क्या चल रही है, उस रट में हम भूल जाते हैं कि हमने निवेश किया है. Let me try to explain you the biggest mistakes which majority of us make. The only way to understand anything in this world is look at history. So let me talk something about history and let me solve the first problem which majority of us are facing. The first problem which I talked about, the reason why clients are stopping their SIP is because in the last couple of years, they have seen negative returns. Now let me talk about what do you mean by negative returns. The problem is, and I'll give you a story of India first. Okay, India doesn't have a very big history of stock market. It has a small history of 40 years. Sensex is nothing but a top 30 companies in the country. It started somewhere in April 1999.
Okay, and it's been almost 40 years. And if you look at the SIP returns, if you would have done a SIP in a Sensex, you would have made 14.5% returns. But the moment I tell you that you made 14.5% returns, your first thought which will come to your mind, it would have been a straight line, a straight journey of 14.5%. No, we are investing into businesses, and businesses never have a straight line. You have good periods, you have bad periods, you have horrible periods, you also have those periods जहां पे 4-4 साल कुछ भी नहीं होता, और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जहां 4 महीने में मार्केट डबल हो जाती है. This is how typically the journey of businesses look like. Let me explain this with graphs and charts so that आपको समझ सके मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं. In fact, a very close friend of mine, Sunil, most likely even he's there today in the session. So I'll take his example just to explain how typically stock market looks like. Let's imagine मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूं कि इक्विटी क्या होता है. इक्विटी इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इनटू गुड कंपनीज, बिजनेसेस, और ये बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं. आई जस्ट गिव हिम अ सिंपल एग्जांपल कि 1981 में व्हेन आई इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट आई मेड 50% रिटर्न. So Sunil feels very happy. Wow, 50% रिटर्न बन गए स्टॉक मार्केट में. Even I want to come into equity market. But unfortunately for him, 1982, 1983, 1984, 3 years, equity market बहुत कम returns देती है. Sunil gets very disappointed because उसका mind anchor हो गया था कि मुझे 50% चाहिए, but उसको मिले सिर्फ 8, 9, 10%. वो बोलता है मुझे इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करना, मुझे वो अच्छे रिटर्न मिल ही नहीं रहे. And he comes out of equity market. And unfortunately, जैसे ही वो पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल लेता है, अगले ही साल 1985 में इक्विटी 90% रिटर्न दे देती है. दिस टाइम सुनील फील्स वेरी हेल्पलेस. बोलता है ओ गॉड, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने इक्विटी से पैसा क्यों निकाला, और वापस इक्विटी मार्केट में जंप कर लेता है. बोलता है कि इस बार मैं पैसा डालूंगा इक्विटी मार्केट में और निकलूंगा नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली अगेन फॉर सुनील, 1986 और 1987, 2 years मार्केट गिव्स नेगेटिव रिटर्न्स. एंड वी ऑल ऑफ अस नो जब नेगेटिव रिटर्न मिलते हैं तो कितना दर्द होता है, कितना बैड फील होता है. सुनील फेल्ट वेरी बैड कि मेरा नुकसान हो गया इक्विटी मार्केट में, ये तो मैंने गलती कर दी इक्विटी में डाल के. एंड अगेन ही रिमूव्स मनी फ्रॉम इक्विटी मार्केट इन अ लॉस. इंटरेस्टिंगली, इन द वेरी नेक्स्ट ईयर व्हिच इज 1989, इक्विटी मार्केट अगेन गिव्स अ 50% रिटर्न. बट दिस टाइम सुनील इज वेरी कॉशियस. See, we human beings love to see trends. So there's a very interesting trend which Sunil has seen, that 1 year market does very well, then couple of years market is not doing well, again market did well, again couple of years market didn't do well. सुनील का फिलॉसफी ये कहता है कि आने वाले वक्तों में 2-3 साल मार्केट अच्छा नहीं करेगा, उसके बाद अच्छा करेगा. So he will wait for the opportunity. But interestingly, market doesn't behave in terms of how Sunil thinks, I think, you think, and all of us think. मार्केट की अपनी अलग सोच होती है. इंटरेस्टिंगली मार्केट 89, 90, 91, 92, 93, 94 लगातार 5 साल इट डज वेरी वेल एंड इट गिव्स वेरी गुड रिटर्न्स. सुनील फील्स वेरी डिसअपॉइंटेड. बोलता है कि मैंने गलती कर दी इक्विटी में नहीं रह के. नाउ ही जंप्स अगेन टू इक्विटी मार्केट. जैसे ही वापस जंप करता है इक्विटी मार्केट में, 95 में वापस लॉस होता है, 96 में वापस लॉस होता है, 97 में मार्केट बढ़ती है, 98 में फिर गिर जाती है, 99 में मार्केट 60% रिटर्न देती है. जब लगता है सब कुछ ठीक हो गया, इंटरेस्टिंगली देखिए 2001 2 साल मार्केट लगातार नेगेटिव रिटर्न देती है. इवन 2002 में मार्केट गिव्स वेरी लो रिटर्न्स. नाउ आई विल लाइक यू टू ऑल ऑफ यू टू हाईलाइट एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. वी ऑल ऑफ अस नो द बुल मार्केट ऑफ 2003 to 2007, 2003, 2004, 2005, 2006 and 2007. These 5 years, equity market gave very good returns. But very few people know, before this good returns, we had 3 years of horrible returns. कहने का मतलब ये है, जब हमें bearish लगता है ना, उसके बाद bull market शुरू होती है. And 2007, when everybody thought there is nothing better than equity because you got so amazing returns, what happened in 2008? Equity market corrected by 54%. It corrected by 54%. And let me explain you the experience, because I was managing a lot of clients during those times. उस समय इतनी negativity थी. The world's biggest companies were almost on the verge of failing. Lehman Brothers, जिसका 150 साल का इतिहास था, लग रहा था ये कंपनी, इनफैक्ट वो कंपनी बंद हो गई. AIG, वर्ल्ड की बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी, technically it went bankrupt.
देयर वाज सो मच नेगेटिविटी एंड सो मच पेसिमिज्म, ऐसा लग रहा था कि हम स्टोन एज में चले जाएंगे। और क्या हुआ अगले साल? द वेरी नेक्स्ट ईयर इक्विटी मार्केट गेव यू 80% रिटर्न। फिर वापस मार्केट बड़ी गिरी, बड़ी गिरी, बड़ी गिरी, और ये जर्नी रही। दिस इज द रोलर कोस्टर जर्नी ऑफ इक्विटी मार्केट। जब मैं आपको कहता हूं ना लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट अच्छा रिटर्न बना सकता है, कुछ लोग कहते हैं 12, 13, 14 या जितना भी रिटर्न है, इसका मतलब ये नहीं कि 12% या 13% हर साल बनेगा। सम ईयर्स यू विल मेक गुड रिटर्न्स, सम ईयर्स यू विल मेक एवरेज रिटर्न्स, सम ईयर्स यू विल मेक नो रिटर्न्स, और कुछ साल ऐसे भी होंगे जहां आपके नेगेटिव रिटर्न्स बनेंगे, और कुछ साल ऐसे भी आएंगे जब नेगेटिव रिटर्न्स बहुत ज्यादा होंगे। बट दिस इज पार्ट ऑफ द जर्नी ऑफ इक्विटी मार्केट। वन हैज टू अंडरस्टैंड एवरेज रिटर्न्स का मतलब ये नहीं कि वो रिटर्न आपको हर साल मिलेंगे, कुछ साल ज्यादा मिलेंगे, कुछ साल कम मिलेंगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टर। नाउ लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इंसान मिस्टेक कहां कर देता है। Where do human beings make a lot of mistake, especially where do investors make big mistakes when it comes to equity investment? मैंने ये बेसिकली निफ्टी के लास्ट 20 साल के रिटर्न्स दिखाने की कोशिश की है। इट्स अ जर्नी ऑफ 20 years of Nifty. This is basically a journey of a businessman. If you read any autobiography of any businessman, he will never say it's a straight line. He will say my journey had good time, bad time, horrible time, boring time. Even the journey of Nifty, which is nothing but the aggregation of top 50 companies, is exactly the same. From 2000 to 2003, you made no returns. It was almost like आपने दुकान शुरू की है, इन्वेस्टमेंट शुरू की है, बट कुछ रिटर्न्स बन ही नहीं रहा। आप ऑलमोस्ट डिसअपॉइंट फील करोगे, इससे बेटर तो एफडी कर दिया होता, इससे बेटर तो वो कर दिया होता, इससे बेटर वो कर दिया होता। 3 साल कुछ रिटर्न्स बने ही नहीं। 2003 से लेकर 2008 तक 5 साल इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा भाग रही है। इस समय ऐसा लगता है एफडी क्या करना, 5-6%, 7% से क्या होता है, इक्विटी में सारा पैसा डाल दो, यहां पे सारे रिटर्न्स बनते हैं। 2008 में जब मार्केट गिरी, लगता है कि ये तो फ्रॉड हो गया, ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। 2010 में मार्केट ने वी शेप रिकवरी की। अगेन फॉर 5-6 इयर्स यू सॉ नो रिटर्न्स इन इक्विटी मार्केट। इमेजिन 4-5 साल इक्विटी में रिटर्न बन ही नहीं रहा। फिर अचानक मार्केट वापस बढ़ती है, थोड़ी गिरती है, वापस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इन 2020। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पेंडेमिक, market corrects by 38% and bounces back. What I'm trying to explain you, this is the journey of any businessman. This is the journey of stock market. And this is not just India. You go across the world, whether you go to United States, Europe, Australia, Brazil, South Africa, any country in the world, the stock market journey is exactly like this. कभी बोरिंग वक्त आता है, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी खराब वक्त आता है, कभी बोरिंग वक्त आता है, कभी अच्छा वक्त आता है। This is the journey of stock market. But पता है इंसान गलती कहां करता है? It's called recency. जो recent information होती है ना, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं what did you had for breakfast today morning, most likely आपको याद रहेगा। बट मैं अगर आपसे पूछूं what you had for breakfast 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, you have forgotten about it. हमारा दिमाग भी कुछ उसी तरीके से है। We give too much importance to what is happening right now. We are giving too much importance to COVID right now. I can write down 5 years down the line, 10 years down the line, majority of us will even forget about this. This is how typically our human brains are. How many of you remember 1 महीना पहले हम इंडिया चाइना डिस्कस कर रहे थे और न्यूज में सिर्फ इंडिया चाइना डिस्कस हो रहा था। आज ये बात डिस्कस हो भी नहीं रही। उससे पहले डीमोनेटाइजेशन, उससे पहले बजट्स, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कीप गेटिंग डिस्कस्ड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट सीम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, but from a long term perspective we don't even remember these events. And this is the biggest problem of our mind. We give too much importance to current returns. We forget the long-term journey. When I talk about the journey of Nifty, you pick up, आप Google में जाइए, कोई भी stock की journey देखिए। I'll give you another example. Reliance Industry. Today I know a lot of people are saying, I wish I would have invested into Reliance Industry. But people don't remember from 2008 to 2017 mid, for almost 9.5 years, Reliance Industry gave no returns. Zero returns, 9.5 years. Mukesh Ambani was working very hard, but the stock gave no returns. But in the matter of 5-6 years, in fact, in the matter of 4 months, the stock has doubled. This is the journey of how stock markets move. It's not a linear line. It's a journey of ups and downs. Now let me come to the second point, trying to explain you
what is the biggest problem when it comes to investment? I put a picture of squirrel जहां पे वो gossip कर रहे हैं. Let me talk about a human brain, how it thinks. So basically, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर पहाड़ पे 5 शीप्स हैं और एक शीप जंप कर देती है तो कितनी शीप बचेगी? If you are approaching this problem from a maths perspective, you will say, okay, 5 sheeps, 1 jumps, so 4 sheeps are left. You are right. But if you are approaching this problem from a psychology perspective, you will say, okay, one sheep is jumping, other 4 sheep will also follow the first sheep, and even they will jump. You are also right from a psychological perspective. And you are right. If you're approaching this problem from a psychological perspective, this is what will happen. If one will jump, even others will also jump. Even we as investors are also exactly the same. We also like to follow each other when it comes to investing. Sometimes we become bullish with everyone. Sometimes we become bearish with everyone. कभी-कभी हमें सब लोग इक्विटी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं. कभी-कभी डर के मारे इक्विटी भागना शुरू कर देते हैं. And there is also reasons to it because there is so much information in this world. इतना ज्यादा information है कि वो information absorb कर करके हम actually हमारा mind corrupt हो जाता है. There is information on internet, television, radio, newspaper, magazines, friends, so much chit chatting. And media में problem पता है क्या होती है? जब मार्केट बढ़ती है, which is actually an unfortunate point, जब मार्केट बढ़ती है तो सब लोग हंस रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. वहां पे जब अगर आपको मीडिया जब आपको आर्टिकल्स भी दिखाता है तो दिखाते हैं कि ट्रेडर्स तालियां बजा रहे हैं, सब खुश हैं. और जब मार्केट गिरती है तो इतनी खराब फोटोज दिखाती हैं, हेडलाइंस आती ऐसे आती है, इन्वेस्टर्स लॉस्ट 5 लाख करोड़ ऑफ वेल्थ. एक्चुअली फ्रॉम अ लॉजिकल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव अगर इस न्यूज को उल्टा कर दिया जाए, जब मार्केट गिर रही है, समझो इन्वेस्टर के पॉइंट से दिखाया जाए 20% सेल, 30% सेल, अभी डालोगे आपको वही अच्छी कंपनियां सस्ते मिल रही हैं, 20%, 30%, एंड एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग. लुक एट दिस, हाउ आवर अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट्स विल चेंज. एंड वाइस वर्सा, जब मार्केट बढ़ रही है थोड़ा अफसोस वाली फोटो आनी चाहिए. ओ गॉड, ये कंपनी महंगी हो गई, काश मैंने इसको पहले इन्वेस्ट कर दिया होता. द प्रॉब्लम इज, unfortunately, the media shows when markets are going up, everybody is celebrating, and when market is falling, everybody is basically behaving जैसे बहुत ही कुछ खराब हो गया है. It is actually the other way around. It is not just India. Across the world, media represents stock market in this way, and because of this, many investors make big mistakes when it comes to investments. Let me show you a very interesting chart. अगर आप ये चार्ट समझ जाओगे, your fear of equity markets will completely go away. There is a very interesting thing. We human beings love stories. मेरा 8 साल का बेटा है, जब भी इसको फ्री टाइम मिलता है मुझसे स्टोरीज पूछता है. And if in case I don't have stories, then he goes to his grandmother or he goes to my wife. And if all three are busy, he actually wants to listen to Krishna and he wants to listen to stories. We human beings love stories a lot. Even I watch a lot of Netflix and Amazon Prime because even I love stories a lot. We human beings are born and brought up with stories. Facts boring लगते हैं, stories interesting लगती है. But ये fact अगर आप समझ जाओगे इक्विटी मार्केट का, आपका बहुत सारा डर इक्विटी मार्केट से निकल जाएगा. Let me talk about a person called as Madame Curie. Madame Curie was the first woman to get a Nobel Prize. In fact, a first woman to get a Nobel Prize twice, and that too in 2 different fields. वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलती है, अगर आपको डर का सामना करना है ना, तो डर को समझो. The only way to defeat fear is to understand fear. And what this chart shows? This chart shows how much percentage equity market corrects every year. ये चार्ट ये दिखाता है कि हर साल मार्केट में कितने परसेंटेज का गिरावट होती है. इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर आप नहीं समझे ये डेटा पॉइंट, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करता हूं. Let's take an example of 2020, the year which we are experiencing right now. Sensex was at 42,000 level. Because of the pandemic, bigger people started selling, market corrected by 38%. Let's say everything becomes fine and Sensex comes back to 42,000 level. If I ask you, what is the returns which you made in 2020? Your answer will be 0% because you started at 42, you ended at 42, so your returns are 0%. But if I ask you, इस साल आपने कितने परसेंटेज की गिरावट देखी? What is the fall which you have experienced in this year from the highest point to the lowest point? You will say a 38% fall. Wow.
बहुत बड़ी गिरावट थी, डर बहुत लगा, बट लेट्स लुक एट हिस्ट्री। क्या ये पहली बार मार्केट गिरी है? लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ निफ्टी इन द लास्ट 30 years. 1990, in the year 1990, market had corrected, Nifty had corrected from its top to the bottom by 32%. 92 or 1991, 35%. 1992, 45%. 1993, almost 30%. 1994, almost touching 20%. 1995, market almost corrected by 30%. 96, 35%. 1997, 25%. 1998, 33, 34%. 2000 and 2001, 35% and 40% respectively. Even in the bull market of 2003 to 2008, in 2 years, which is 2004 and 2006, market corrected by 30%. 2008 में 60% मार्केट गिरी. उसके बाद काफी साल मार्केट कम गिरी, जिसके वजह से we started believing कि इक्विटी मार्केट वोलेटाइल होती ही नहीं है. And suddenly, when we experienced the fall in 2020, majority of us panicked. Yes, there were reasons to get panicked, but if you look at history, you will realize ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट गिरी है. And honestly, if you want a view of equity market for the next 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, and 30 years, equity market will correct every year. That's the nature of equity market. Some years it will correct less, some year it will correct more, some year you'll have few odd years where market correction will be very, very high. That's the nature of equity market. And this is not just India, this is across the world. This is how equity markets are volatile. अगर आप ये बात समझ जाओगे, आपको इक्विटी मार्केट से डर लगना बंद हो जाएगा. आप किसी से कहानियों में नहीं पूछोगे कि मुझे बताओ मार्केट क्यों गिर रही है. बहुत सिंपल है, मार्केट का काम है हर साल गिरना. दैट्स द नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट. अगर आप ये बात समझ जाओगे, यू विल नॉट फील सरप्राइज्ड एनी ईयर व्हेन मार्केट करेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, इफ आई गो टू दिल्ली एंड आई नो इन द मंथ ऑफ मे एंड जून इट इज वेरी हॉट ओवर देयर, डू यू थिंक आई शुड गेट सरप्राइज्ड? नो, हर साल धूप होती है. लेट्स इमेजिन इफ यू कम टू बॉम्बे और यू गो टू असम where it rains very heavily in the month of July. I know it's very normal. इसमें घबराने वाली बात क्या है? When I look at this chart, I know market corrects every year. I will not get worried about equity market the way it falls. And that's the nature of equity market. That's very, very important for you to understand. Now let's take the third challenge, where all of us are believing that in the next couple of years, market might not do well. Anything which you do in life, anything, you should always look at the odds of winning. कि आपके जीतने के चांसेस कितने हैं, और जहां पे भी जीतने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, वही चीज करो लाइफ में. Let me explain you from an equity perspective. What I have done in the last 40 years, जो सेंसेक्स की जो लास्ट 40 years की जर्नी है, मैंने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 का, 10 का, 12 का, 15 का और 20 का रोलिंग रिटर्न निकाला है. रोलिंग रिटर्न थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो जाता है. रोलिंग का कहने का मतलब यह है कि मैंने वर्स्ट 1 साल का एसआईपी रिटर्न निकाला है. मतलब कोई भी महीने में आपने एसआईपी शुरू की होती, 1 साल का वर्स्ट एसआईपी रिटर्न है 64%. क्वेश्चन ये है, वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा? वंस यू नो ना वर्स्ट से वर्स्ट क्या होगा, योर माइंड इज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. देन इट्स अ फिलॉसफी इन लाइफ, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. 2 साल की आप एसआईपी कर रहे हो ना, 40 साल का डेटा ये दिखाता है वर्स्ट 2 साल का रिटर्न -42% होगा. 3 साल के लिए आप एसआईपी करते हो ना, वर्स्ट रिटर्न जो होगा 24% होगा, जो दिखाया है. ओके, 40 सालों में. ये मैं वर्स्ट की बात कर रहा हूं. द वर्स्ट 5-year रिटर्न इन एसआईपी इज 11%. द वर्स्ट 7-year रिटर्न इन एसआईपी इज 8%. द वर्स्ट 10-year एसआईपी रिटर्न is -4%. The worst 12-year return is only -1%. Now the interesting. Worst 15-year return is 5%. The worst 20-year return is 10%. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, पहली बात तो मैं एसआईपी कभी भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल की नहीं करूंगा. If I am doing my SIP, I will keep my horizon at least 10 years plus. I will keep it 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. That's how your horizon for equity SIP should be. When I look at the data for 20 years, what I'm trying to see, अगर मेरे को worst return भी मिल जाएगा ना 10% का, it is still better than the best return of any other asset class. Even if I get the worst return of SIP in the last 20 years,
It's still better than the best returns of any asset class. And that's why, that's the power of equity and wealth creation. To explain this further, let me take an example of DSP fund. DSP as a mutual fund, we manage around 80,000 crores of assets. We manage both equity and fixed income. हमें 25 साल हो गए हैं इन्वेस्टमेंट बिजनेस में पैसा मैनेज करते हुए. This is one of my oldest fund. This is called as DSP Equity Fund, a fund which has got 23 years of track record. And let me explain you the journey. Please, ये आप ये प्लीज समझने की कोशिश करना. ये 23 सालों में इस SIP की जर्नी कैसे हुई है. अगर आप ये जर्नी समझ जाओगे ना, I'm very sure you will be able to create wealth for yourself and for your families. ये जर्नी शुरू हुई 1997 अप्रैल में. The first 3 years the fund did exceedingly well. बहुत बेहतरीन रिटर्न बने. उसके बाद 2000 में आई डोंट नो कितने लोग को याद है, एक IT बबल हुआ था, टेक बबल या .com बबल हुआ था, यूएस में हुआ था, जिसकी वजह से ग्लोबल शॉक आ गया था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स पूरे वर्ल्ड में गिरने शुरू हो गए थे. इंडिया में भी मार्केट गिरी और ये फंड 69% गिर गया. वापस फंड बढ़ा बिकॉज मार्केट फिर बढ़नी शुरू हुई और वापस 2003 में जब फंड बढ़ा, 2003 में जब मार्केट गिरी, दिस फंड करेक्टेड बाय 26%. अगेन दिस फंड स्टार्टेड डूइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. अच्छा करना शुरू कर दिया इस फंड ने. फिर 2006 में जब मार्केट करेक्ट हुई, दिस फंड अगेन करेक्टेड बाय 31%. फिर फंड वापस और बढ़ा. 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, विच ओरिजिनेटेड अगेन फ्रॉम अमेरिका, फंड करेक्ट हुआ 56% से. मार्केट फिर बढ़ी और 2010 में वापस एक प्रॉब्लम शुरू हो गई थी वर्ल्ड में, जिसकी वजह से फंड मार्केट्स गिरी. ये फंड वापस 29% गिरा. वापस मार्केट बढ़ी, फंड गिरा, वापस बढ़ी, फंड गिरा और वापस मार्केट बढ़ी 2020 तक. और 2020 में सब कुछ जब सही लग रहा था, दिस फंड अगेन करेक्टेड बाय 36% एंड अगेन दिस फंड हैज रिकवर्ड बैक. अगर आप एक बेसिक मैथ्स करोगे, लास्ट 23 सालों में एटलीस्ट 7 से 8 बार ये फंड 25% के ऊपर गिरा है. इफ यू डू अ सिंपल मैथ्स, हर 3.5 साल के बाद ये फंड एटलीस्ट 30% गिरता है. बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट. ये SIP की वैल्यू बता रहा हूं. कभी कभी हम पूछते हैं ना, 10,000 रुपए की वैल्यू क्या होती है. लेट्स इमेजिन यू हैड अ सन और अ डॉटर and you started a SIP in his or her name in 1997, and if you are checking this value right now, that 10,000 rupees value till date, I'm not saying today because it's as on 29th May 2020, और 2 महीने में मार्केट और ज्यादा बढ़ गई है. और मेरा गेस है कि मार्केट एटलीस्ट 15% या 20% बढ़ गई है. कंसिडरिंग दैट ऑल्सो 10,000 रुपए की वैल्यू, कभी कभी पूछते ना SIP 10,000 रुपए की वैल्यू क्या बन सकती है. 10,000 रुपए की वैल्यू इन DSP इक्विटी फंड, द वैल्यू इज 2.72 crores as on 29th May 2020. That's the power of SIP and a disciplined investor. और ये पहली बार मार्केट नहीं गिरी है. अभी आप पूरी लॉन्ग टर्म जर्नी समझने की कोशिश करोगे. I told you the first fall which happened in this fund, which was more than 50%. आपको वो दिखाई भी नहीं दे रहा. So 2000 का फॉल जो 50% का था, वो दिखाई भी नहीं दे रहा. इन द सिमिलर फैशन, आप जो आज फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हो या जो आपने फॉल एक्सपीरियंस किया है, जब आप ये अपने फंड को देखोगे ना, 10 साल बाद, 15 साल बाद या 20 साल बाद, आपको ये फॉल दिखाई भी नहीं देगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ लॉन्ग टर्म. जो आपको आज इतनी बड़ी बड़ी बातें लग रही है ना, क्या हो गया, क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट क्यों गिर गई, इतनी नेगेटिव न्यूज है. द आइडिया इज वेरी सिंपल. लॉन्ग टर्म में ये बातें याद भी नहीं रहेंगी. दैट्स द पावर ऑफ इक्विटी एंड वेल्थ क्रिएशन, which I want all of you to understand. Now, this is a very, very important thing for me. It's called good decision making. Life में good decision making कैसे लेनी चाहिए, प्लीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. Good decisions लिए जाते हैं based on good processes, not only on good outcomes. हमारी पता है प्रॉब्लम क्या है. हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर आउटकम अच्छा है ना, तो हम सोचते हैं प्रोसेस भी अच्छा होगा, और अगर आउटकम खराब है ना, तो हमें लगता है प्रोसेस भी खराब होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट. आई नो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द लास्ट 4 months जो रैंडमली स्टॉक्स खरीद रहे हैं, कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं. पहले लार्ज कैप खरीद रहे थे, आज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स खरीद रहे हैं. When I talk to them and I ask them कि यार आप स्टॉक्स क्यों खरीद रहे हो,
बोलते हैं कि तेरा म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न देता है, लुक एट माई स्टॉक्स, क्या रिटर्न दिए हैं। मैंने बोला वेरी गुड, यू हैव गॉट गुड आउटकम्स विद यू, बट आई आस्क्ड देम अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्या आप जब कोई कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, आपको कंपनी के बारे में कुछ पता है, कुछ जानकारी है? नीदर दे नो हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, उनको ये भी नहीं पता कंपनी का प्रमोटर कौन है, इसके मैनेजमेंट बोर्ड में कौन है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, किस सेक्टर को बिलोंग करते हैं, कैश फ्लो कितना है, डेट कितना है, एक्सपोर्ट कहां पे करते हैं, टीम में कौन कौन है, कुछ भी नहीं पता। बट फिर भी दे आर कॉन्फिडेंट, इट्स अ बैड प्रोसेस बट विद अ गुड आउटकम। आज किस्मत सपोर्ट कर रही है उनको, जिस दिन किस्मत सपोर्ट नहीं करेगी, दे कम द स्ट्रीट। डोंट जज बेस्ड ओनली ऑन आउटकम। इन्वेस्टमेंट्स में तुक्के लग सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डम लक। ओके, नेवर बेसिकली फॉलो बैड प्रोसेसेस, always follow good processes. Good processes in the long term always makes wealth for you. And what are the good processes which every investor should follow? The first good process which an investor should follow is a very basic thing. First of all, write a simple plan कि आप पैसा कमा किसके लिए रहे हो. Write down your short term goals, your medium term goals, your long term goals. Make a right financial planning. Discuss with your advisor. Talk to advisor about all your goals, your needs, your risk appetite, and everything about your goals. And then make a right combination of equity, of fixed income, and a little bit of gold in your portfolio so that you're able to achieve your goal. These are called good processes. And SIP is one of the finest processes which is ever invented. And why I'm saying SIP is the finest process? Because this is one process which is in a disciplined fashion, will take money from your account and it will invest for your long-term goal. What money? All the ECS which is happening in your account is basically expenditure. This is the only ECS which is happening in your account, which is basically for your personal well-being from a long-term perspective. We, all of us in general, are very, very lazy. Why I'm saying very lazy? Today, in spite of having time, if I ask you, how many of you actually do workout? पहले हमारे एक्सक्यूज होते थे, हमारे पास टाइम नहीं है. आज टाइम भी है, बट फिर भी हम वर्कआउट नहीं करते. क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलस आ ही जाता है. एसआईपी में भी कुछ इसी तरीके से होता है. अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑलवेज पोस्टपोन देयर इन्वेस्टमेंट्स कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे. एसआईपी आपको फोर्स करता है हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए. इररेस्पेक्टिव आप कितना भी आलस करो, एसआईपी अकाउंट से पैसा निकालता है और इन्वेस्ट करता है और बोलता है कि लॉन्ग टर्म में ये काम आएगा. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोसेस. एसआईपी कभी में क्या हो रहा है, बजट में क्या हो रहा है, चाइना ट्रेड वॉर क्या हो रही है, डीमोनेटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोविड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बजट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस साल बारिश हुई कि नहीं हुई, इस साल मार्केट ऊपर है कि नीचे. वो बोलता है कि हर एक वक्त अच्छा है इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और वो हर एक वक्त में इन्वेस्ट करता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. दैट्स द बेनिफिट. इट्स अ अमेजिंग प्रोसेस. आई हैव पुट अ पिक्चर ऑफ सचिन तेंदुलकर ओवर हियर, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर क्रिकेट फैंस. स्टीव बकनर ने उसको काफी बार आउट दिया है, इन स्पाइट ऑफ सचिन तेंदुलकर नॉट बीइंग आउट. और इंटरेस्टिंग पॉइंट, सचिन बीइंग सचिन, बिना कुछ बोले निकल जाते हैं. इट इज बेसिकली अ बैड आउटकम बट अ गुड प्रोसेस. ही इज एन अमेजिंग प्लेयर. उनकी कभी कभी किस्मत खराब रहती है, बट जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं, लॉन्ग टर्म में वो हमेशा गुड आउटकम देती हैं. इवन विराट कोहली, अ गुड प्लेयर, काफी बार 0 पे 10 रन पे आउट हो जाएंगे, अ बैड आउटकम, बट ही इज अ गुड प्रोसेस. गुड प्रोसेस के साथ लगिए, बैड प्रोसेस के साथ मत लगिए. फाइनेंशियल प्लानिंग, SIPs are the best processes which you can do for yourself. Lastly, I'll just end up with few slides and then we'll open the floor for questions. I know आज काफी लोगों को unfortunately salary cuts का problem हो रहा है because incomes low हो रही है, because the entire structure is getting changed. देखो, जिनकी जॉब्स चली गई हैं और जिनकी इनकम नहीं है, उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि एसआईपी को स्टॉप मत करो, एसआईपी को पॉज कर लो. जब तक नई जॉब नहीं लगती, जब तक इनकम शुरू नहीं हो जाती, एसआईपी को पॉज कर लो, बिकॉज इनकम ही नहीं है. बट जिन लोगों की सैलरी कट्स हुई हैं, ओके, 5%, 10%, 15% और 20%, मैं आपको कहूंगा दैट कैन नॉट बी अ रीजन फॉर स्टॉपिंग योर एसआईपी. बिकॉज मैंने एक सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग का इन टर्म्स ऑफ वेयर डू पीपल स्पेंड. If you see where exactly people spend, majority of our expenses are in managing our lifestyles. But आज जितने भी लोग घर पे हैं, neither they are going out for eating food,
आज वेकेशंस नहीं हो रही है, आज हम मूवीज नहीं देख रहे, थिएटर्स में नहीं जा रहे, हम नए कपड़े नहीं खरीद रहे, नए जूते नहीं खरीद रहे, गिफ्ट्स नहीं दे रहे किसी को. तो बेसिकली जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ करता था पहले, दैट हैज कम डाउन. दैट्स फर्स्ट. सेकंड इज, हम जो ट्रैवल करते थे, विच इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग कॉस्ट टू ट्रैवल टू वर्क, इवन दैट हैज कम डाउन, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए हैं. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग फिर से कीजिए, देखिए कि कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, और अगर मैनेज कर सकते हो तो प्लीज अपनी एसआईपी स्टॉप मत करो. एंड फॉर ऑल दोस पीपल जिनकी एक्सपेंसेस कम हो गए हैं बट थैंक्स टू गॉड्स ग्रेस उनकी कम नहीं, दे शुड इनफैक्ट इंक्रीज देयर एसआईपी अमाउंट, बिकॉज आपके खर्चे कम हो गए हैं और आपकी आमदनी एग्जैक्टली सेम है. आपको अपनी एसआईपी बढ़ा लेनी चाहिए. एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. मेरे से ना काफी लोग पूछते हैं कि अमित, तूने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, उसके बाद सीएफए की पढ़ाई की, तू फिर भी एसआईपी क्यों करता है? तू अपने कोई कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? तू ये बोरिंग आइडिया में क्यों इन्वेस्ट करता है? हर महीने अपनी 70% सैलरी एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता है और अपनी वाइफ की भी 70% सैलरी तो एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता है. ये बोरिंग आइडिया में तो इन्वेस्ट क्यों करता है? प्रॉब्लम ये है, एज ह्यूमन बींग्स वी लव कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज. हमें लगता है कोई सिंपल आइडिया होगा ना, तो हमें सिंपल आइडियाज पसंद नहीं है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ Savlon and Dettol. Dettol was actually a Johnson & Johnson company product, and Johnson & Johnson is one of the biggest pharmaceutical companies. Now this product has been sold to ITC, तो आज ये ITC का प्रोडक्ट है. जब ये Savlon प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था ना, तो जब Savlon ने अपनी एड ये दिखाई, अगर आप Savlon लगाते हो ना तो जलता नहीं है. और काफी इंडियन वुमेन बच्चों के कपड़े धोने के लिए Savlon यूज करते हैं. When you put Savlon in water ना, पानी का कलर भी चेंज नहीं होता. बट इंडियन मेंटालिटी बन गई थी, बिकॉज जब डेटॉल लगाओ तो बहुत जलता है, और डेटॉल को पानी में भी डालो ना तो उसका रंग चेंज होता है, द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस. सो पीपल थॉट Savlon इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज इफ यू आर पुटिंग Savlon ऑन बेसिकली अ वुंड, और अगर जल ही नहीं रहा तो ठीक कैसे करेगा? बहुत सिंपल लॉजिक है, ठीक होने के लिए जलना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई Savlon वाज नॉट एबल टू डू वेरी वेल इनिशियली. And that's what our brains are also wired. If it is not complex, तो हमें लगता है ये चीज काम आएगी नहीं. हमें लगता है एसआईपी कितना बोरिंग है, हर महीने बस इन्वेस्ट करते रहो. हमें चाहिए कुछ तड़का, रोज मार्केट देखो, टाइम करो मार्केट को, हमें ऐसा कुछ चाहिए. कॉम्प्लेक्स आइडियाज कभी वर्क नहीं करते. जो सिंपल आइडियाज कर सकते हैं ना लाइफ में, वो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया नहीं कर सकता. अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हो ना, सिंपल आइडिया है हेल्थ क्रिएट करने का. सिंपल आइडिया जो कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स आइडिया कभी नहीं कर सकता. बट कॉम्प्लेक्स आइडियाज बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बट दे आर नेवर सक्सेसफुल. एसआईपी इज वन ऑफ दोज सिंपल आइडियाज. लास्टली, हम सब लोग माइथोलॉजी में, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं. टुडे इज ऑल्सो वेरी ऑस्पिशियस डे ऑफ ईद. द आइडिया इज, इफ यू टॉक अबाउट एनी माइथोलॉजी और any philosophy in any religion, the biggest importance is given to something which is called as time. Time is the biggest fund manager. In fact, ये जो फॉर्मूला है ना of something compounding, ये 5वीं कक्षा में सिखाया जाता है. Let's imagine, मैं आपको बोलता हूं कोई चीज डबल होती है. 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 becomes 128. 1 to 64, it took you 7 jumps. 64 to 128 happened in just one jump. कहने का मतलब यह है, जो भी करता है ना, वक्त करता है. टाइम इज द बिगेस्ट थिंग विच एक्चुअली क्रिएट्स वेल्थ. वर्ल्ड के जो बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है वॉरेन बफेट, और वॉरेन बफेट के ऊपर 2000 किताबें लिखी गई हैं. और एक बार जो Amazon, जो वर्ल्ड के बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर माने जाते हैं, वन रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, एक बार वो वॉरेन बफेट से डिस्कस कर रहे थे और बात कर रहे थे. बोलते हैं, मिस्टर वॉरेन बफेट, आपके इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स इतने सिंपल हैं और आपके ऊपर 2000 किताबें लिखी गई हैं. आपकी किताबें पढ़ के वो भी अमीर बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में. तो वॉरेन बफेट बहुत हंसते हुए और मुस्कुराते हुए बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं. बोलते हैं कि लोगों की आईक्यू बढ़ जाएगी किताबें पढ़ के, बट लोग फिर भी रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे. तो जेफ बेजोस थोड़े से हैरान हो गए, पूछा कि ये रिटर्न्स क्यों नहीं बना पाएंगे. तो वॉरेन बफेट बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये सब लोग जिनके पास बहुत हाई आईक्यू है ना, ये सब रातों रात अमीर बनना चाहते हैं. दे ऑल वांट टू बिकम रिच वेरी फास्ट. नोबडी वांट्स टू बिकम रिच लाइक मी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम.
वॉरेन बफेट बोलते हैं मैंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, आज मेरी उम्र 85 इयर्स है, मैंने ऑलमोस्ट 70 साल दिए इन्वेस्टमेंट्स को, और जो मेरे पैसे बने हैं ना, वक्त ने बनाया है। और प्रॉब्लम क्या है, सबको रातों रात अमीर बनना है, इसलिए कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा। और ये कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम इज द बिगेस्ट फंड मैनेजर। एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एसआईपी। समझो कोई 30 साल का नौजवान है, एंड आई होप somebody or also people who are young in this session which I am conducting, I hope somebody is 25 years old and 30 years old, and I wish you understand this idea which I'm talking to you right now. If you start your SIP at the age of 30, even a 5,000 rupees SIP, and you continue this SIP for the next 30 years at a mere 12% compounding, the value becomes 1.52 crores. 5,000 रुपए की SIP का वैल्यू हो जाता है 1.52 करोड़ 30 साल में। और अगर आप बोलते हो नहीं यार मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, SIP अच्छा कंसेप्ट है, अभी तो मेरे घूमने की उम्र है, मैं 35 में शुरू करता हूं, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप 35 में शुरू करोगे ना, आपका कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 विल बी 84 lakhs, which is just 50% lower if you would have started at the age of 30. अगर आप डिले करके इसको 40 साल करते हो, वही कॉर्पस 45 lakhs बन जाता है at 12% compounding, which is 60-70% lower than the person who started at the age of 30. और पता है प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों की आंख और समझ पता है कब खुलती है, मेजॉरिटी टाइम सबको अपने गोल्स रियलाइज होते हैं 50 साल की उम्र में। 50 साल की उम्र में रियलाइज होता है कि यार मेरे को रिटायरमेंट के लिए कुछ जोड़ना है, रिटायरमेंट में कौन काम आएगा मेरे। 50 साल की उम्र में व्हेन दे थिंक अबाउट SIP एंड कंपाउंडिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, आपके पास वक्त नहीं है फॉर कंपाउंडिंग, बिकॉज आप 10 साल और कमाओगे और आपका कॉर्पस कितना बनेगा, सिर्फ 11 lakhs, which is 90% lower if you would have started at the age of 30. What I'm just trying to say you is a very basic concept. जो करेगा वक्त करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ बैठना है, जो करेगा वक्त करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वॉन्टेड टू यूज दिस पिक्चर of explaining retirement. Retirement is a ticking time bomb for this country. Why I'm saying it's a ticking time bomb? Because we have copied the West in terms of expenditure. Because West wants to live today. But unfortunately, we are not West. In the West, the government takes care of your pension. In the West, government takes care of your children's education. In the West, government takes care of your health care and the bills and everything. Unfortunately, in India, we want to copy the West in terms of expenditure, but we have forgotten our human life age span is increasing. As India is becoming more developed, the medical facilities are becoming better, our lifestyles are becoming changing better. Majority of us will stay at the age of 80, 85 and 90. Imagine you getting retired at the age of 60 or maybe 55 and having 30 years of retirement. क्या आपको लगता नहीं है आपके पास एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए to basically have a good life? That's why leave about stopping your SIP. Please double your SIP if you can, because you want to have a very good, amazing retirement. And honestly, if you think your children are your retirement plan, you are making a biggest blunder in your life. Lastly, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। दुनिया में कुछ भी, nothing in life is free. When I told you फिक्स्ड इनकम जो एफडीज होती हैं आपको 6-7% रिटर्न देती हैं, महंगाई भी 6-7% होती है, तो बेसिकली फिक्स्ड इनकम महंगाई को हरा नहीं सकता। बिकॉज अगर महंगाई 6-7% से बढ़ रही है, फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट रेट भी 6-7 से बढ़ रहे हैं, तो इफेक्टिवली आपको 0% मिला। इक्विटी इज द ओनली एसेट क्लास इन द लॉन्ग टर्म जो महंगाई को हरा सकता है। और जब इक्विटी लॉन्ग टर्म में महंगाई को हरा सकता है और वेल्थ क्रिएट करेगा, और इक्विटी में आपको करना क्या है, आपको सिर्फ कंपनीज में निवेश करना है थ्रू अ म्यूचुअल फंड रूट। मेहनत कोई और कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क फ्रॉम होम। इन इक्विटी देयर इज नो वर्क एट ऑल। आपको बिना कुछ किए अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, बट कोई प्राइस पे करना पड़ता है आपको। वो प्राइस है वोलेटिलिटी। द प्राइस इज वोलेटिलिटी। द प्राइस इज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लो टू नेगेटिव रिटर्न्स। द प्राइस इज अनसर्टेनिटी, जो हम आज फेस कर रहे हैं, क्या हो रहेगा, क्या हो जाएगा। द प्राइस इज एंग्जाइटी। जब हम देखते हैं मार्केट में पोर्टफोलियो गिरते हुए, इट्स स्वाभाविक है, जब अपना वैल्यू देखते हो पोर्टफोलियो गिरते हुए दर्द होता है।
वी आर ह्यूमन बींग्स, एवरी ह्यूमन बींग्स फील एंशियस एंड अनसर्टन जब अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखता है. दैट इज द प्राइस विच एवरी इन्वेस्टर हैज टू पे. द ब्यूटी इज हम सब चाहते हैं हम धोनी बने, विराट कोहली बने, वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, बट जो दिखाई नहीं देता ना इज बेसिकली द हार्ड वर्क. लेट्स इमेजिन इफ आई से, अगर आपके बच्चे आपसे आके बात करते हैं कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है और बोलते हैं मुझे पढ़ाई नहीं करनी, आप हंसोगे उसके ऊपर, ऑब्वियसली आप हंसोगे. इन द सिमिलर फैशन आप कहते हो मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करनी है, बट मुझे ना वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ना ऐसा पीरियड नहीं चाहिए जहां पे लो और नेगेटिव रिटर्न्स हो, मुझे वो अनसर्टेनिटी और एंजाइटी नहीं चाहिए. तो ऑनेस्टली आपको वो रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे. अगर आपको वो रिटर्न्स चाहिए लॉन्ग टर्म में, विच एक्चुअली is the most important thing, and everybody should become wealthy by investing into equity mutual funds, that is a price which you have to pay. Lastly, how should be your approach to SIP? There are two ways to approach SIP. Markets will always move up and down. इसको आप नहीं बदल सकते, इसको आप नहीं बदल सकते. आप कितनी भी कोशिश कर लो, मार्केट ऊपर नीचे जाएगी. आप सिर्फ अपना स्वभाव बदल सकते हो, या आप 24 घंटे मोबाइल के साथ या टीवी के साथ CNBC, इकोनॉमिक टाइम्स और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सुनते रहो और कनेक्टेड रहो, या फिर आप बोलो कि मेरा फेथ है इक्विटी मार्केट में, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में, मैं सिर्फ SIP करूंगा और जो भी होगा अप्स एंड डाउन्स, मुझे पता है दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता. मुझे इतना पता है businesses over a longer period of time create wealth, and I will continue my SIP irrespective of whatever anyone says. This should be ideally the approach to SIP. देखो हमारा ना एक्चुअली एज अ बिहेवियर पर्सपेक्टिव हमारा एक मंकीज ब्रेन है. What do I mean by monkey's brain? It is a very simple idea. हमारा दिमाग हमें एक जगह पे बैठने देता ही नहीं है, हमें एक सेकंड में पूरी दुनिया घुमा देता है. कभी हमें डर लगता है कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा. आपको सिर्फ इतना बताना है, निवेश में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है. देयर इज नो अदर एसेट क्लास व्हिच टॉक्स अबाउट टाइम होराइजन. अगर आप हीरे की भी एड देखोगे ना, डायमंड इज इनफैक्ट द वर्स्ट एसेट क्लास, उसमें कभी इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए. हीरे की एड कैसे आती है? डायमंड्स आर फॉर एवर. रियल एस्टेट लोग जनरेशंस के लिए रखते हैं, गोल्ड ऑब्वियसली जनरेशंस के लिए रखा जाता है, एफडी को पूरी जिंदगी ऑटो रिन्यू करते हैं, और इक्विटी विच इज नथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस, इसमें हम टाइम होराइजन की बात करते हैं. कितनी बड़ी आयरनी है. कौन सा बिजनेसमैन अपनी बिजनेस शुरू करता है विद द टाइम होराइजन? इमेजिन कीजिए धीरूभाई अंबानी अपनी बिजनेस शुरू कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री और बोल रहे हैं मेरा 3 इयर्स का टाइम होराइजन है. कौन सा बिजनेसमैन टाइम होराइजन की बात करता है? सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग परपेचुअल 20 साल 30 साल 40 साल की बात कीजिए, तब वेल्थ क्रिएट होगा. और अपना एसआईपी हमारे 5 से 6 अच्छे, ये फंड को 23 साल हो गए. अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की होती 1997 में, ये इक्विटी फंड जो हमारा डीएसपी इक्विटी फंड है, ये लार्ज कैप, मिड कैप और तीनों में इन्वेस्ट करता है. 70% लार्ज कैप में है, 30% मिड कैप और स्मॉल कैप में है. इसने कॉर्पस बनाया है अराउंड 2.89 करोड़ का. हमारा एक और फंड है जिसका नाम है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड. ये बेसिकली सेबी ने क्लासिफाई किए हैं. ये लार्ज एंड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है, सिर्फ लार्ज और मिड कैप कंपनीज में. इसको भी 20 साल हो गए हैं. किसी को थोड़ा और रिस्क लेना है तो हमारे पास डीएसपी मिड कैप फंड है. ये मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. मिड साइज में एडवांटेज ये होता है कि रिटर्न्स बनने की चांसेस ज्यादा होते हैं, बट रिस्क भी ज्यादा होता है. मतलब रिस्क मतलब उतार चढ़ाव. एक और है डीएसपी स्मॉल कैप. इसमें रिटर्न्स बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बट उतार चढ़ाव भी उतना ही ज्यादा होता है. डीएसपी टैक्स सेवर, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी बन जाते हैं, प्लस आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है. अगर आप कंजर्वेटिव क्लाइंट हो तो आप बैलेंस फंड में अपनी एसआईपी कर सकते हो, जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है, तो इसमें उतार चढ़ाव थोड़ा कम हो जाता है. और अगर आप बाहर के देशों में इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्पेशली यूएस मार्केट में, यूएस मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है. जैसे आपको लगता है इंडिया की मार्केट अच्छी है, आपको कुछ पैसा यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, तो हमारे पास डीएसपी यूएस फ्लेक्सिबल फंड है. ये बेसिकली ब्लैक रॉक मैनेज करता है. ब्लैक रॉक वर्ल्ड का बिगेस्ट फंड हाउस है.
तो ये फंड भी बहुत अच्छा है, इसने भी लास्ट 10 सालों में, इनफैक्ट 8 सालों में बहुत अच्छा किया है। हम इसको फंड को पिछले 8 साल से मैनेज कर रहे हैं। सो बेसिकली ये यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जैसे Amazon, गूगल, इनफैक्ट जो भी आप यूएस की कंपनीज जानते हो। तो बेसिकली आप एसआईपी इंडियन कंपनीज में कीजिए, और अगर आप चाहते हो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा यूएस की कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लास्टली, आज का जो सेशन था ऐसा मैंने कोई बड़ी बात नहीं बताई आपको, मेजॉरिटी चीज आपको पता होती है। एक अच्छे एडवाइजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एडवाइजर आपको समझता है, आपके रिस्क एपेटाइट को जानता है, आपको वही चीज बार बार दोहरा के समझाने की कोशिश करता है। कभी कभी जब आप गलतियां करते हो तो आपकी गलतियों पे आपको बताता है कि आप ये गलत कर रहे हो। आपकी गोल बेस्ड प्लानिंग करता है और कोशिश करता है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो अपने ऊपर ले ले। दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो लोगों में देखा गया है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, और देखा गया है जहां पे भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके एडवाइजर के साथ डिस्कस करते हैं अपने गोल्स, अपना रिस्क एपेटाइट, अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स, और उसका एडवाइजर उसके हिसाब से उनकी एलोकेशन करता है, बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर पाओगे और लाइफ में सुखी भी रह पाओगे। With this, I will end the session, and I'm happy to take any questions if you have. Thank you. Yes, Amit ji, first of all, many congratulations for such a nice session. And I cannot show the feedback column to you right now, but I will obviously send it separately to you because it is flooded with so many good wishes for such a wonderful session. And yes, and majority of the participants was very excited about your analogy of daily life examples and equity, जिसमें आप टीवी, फैन, एसी ये सब के साथ इक्विटी को कंपेयर कर रहे थे। एंड वेरी नाइसली दिस प्रेजेंटेशन इज डन इन अ वे कि जहां पर मैं जब ये क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूं तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर प्रेजेंटेशन इटसेल्फ, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो मेरे को भी लगता है कि इट शुड बी रिपीटेड फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ सर। या तो एक क्वेश्चन बहुत सारे इन्वेस्टर का जो है कि गोल्ड इज गिविंग वेरी गुड रिटर्न एंड यू आर प्रोमोटिंग इक्विटी, so rather than equity why a person should not start gold investment at this point of time? ठीक है, मैं आपको पहली बात ना फिर मैं प्रोसेस के ऊपर आ जाऊंगा। प्रोसेस क्या होती है, इक्विटी को पहले समझिए, फिक्स्ड इनकम को समझिए और गोल्ड को समझिए। पहले तो मैं फिक्स्ड इनकम पे आता हूं, जिसको हम एफडी रेट बोलते हैं। इंडिया में इंटरेस्ट रेट 4 या 5% है, बिकॉज इंडिया में महंगाई 4 या 5% है, या 5 या 6% है। सो इफेक्टिवली कितना मिला, 0%। यूएस में इंटरेस्ट रेट 1% है, बिकॉज वहां महंगाई 1% है। तो फिक्स्ड इनकम ने क्या रिटर्न दिया, 0%। तो जितनी महंगाई होती है ना उस देश में, उतना इंटरेस्ट रेट होता है। तो गोल्ड ये होता है फिक्स्ड इनकम। इक्विटी का मतलब होता है वेल्थ क्रिएशन, जो आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। गोल्ड एक्चुअली एक पत्थर है, और पत्थर को ना वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आइडियली इक्विटी में प्रॉफिट्स होते हैं, अर्निंग्स होती हैं। फिक्स्ड इनकम में ब्याज मिलता है, तो उसको आप वैल्यू कर सकते हो। पत्थर को आप वैल्यू कैसे करो? तो इसमें दो व्यू बन जाते हैं। जब भी दुनिया में देखा गया है, जब भी अनसर्टिनिटी होती है ना, उस समय गोल्ड अच्छा करता है, और जब भी दुनिया में सर्टिनिटी होती है ना, उस समय गोल्ड अच्छा नहीं करता। मैं जानता हूं सब लोग गोल्ड की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज रीसेंट रिटर्न्स गोल्ड के बहुत अच्छे हैं। माय ब्रदर इन लॉ इज बेसिकली अ ज्वेलर। वो दिल्ली में उनकी ज्वेलरी की शॉप है। 2013 से लेके 2019 तक 6 साल, इनफैक्ट 6.5 साल बोलते थे दुकान पे बहुत कम लोग आते हैं। बहुत सिंपल रीजन है, बिकॉज गोल्ड का भाव 6.5 साल कुछ हिला ही नहीं। और जब आज सब लोग को पता है गोल्ड पसंद क्यों आ रहा है, बिकॉज लास्ट 1 साल में, 1.5 साल में गोल्ड ने 50% रिटर्न दे दिया है। और बहुत सिंपल आइडिया है, हम वही गलती कर रहे हैं। हम रिटर्न्स को चेज कर रहे हैं, हम प्रोसेस को चेज नहीं कर रहे, हम आउटकम को चेज कर रहे हैं। थोड़ा पोर्टफोलियो रखिए, 5 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू गोल्ड। मैं मना नहीं कर रहा हूं। फिक्स्ड इनकम में रखिए, बिकॉज आपको सेफ्टी भी चाहिए पोर्टफोलियो में, और इक्विटी में भी रखिए जो वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये इक्विटी बेटर है या गोल्ड बेटर है। इक्विटी फॉर वेल्थ क्रिएशन,
गोल्ड फॉर अनसर्टिनिटी, फिक्स्ड इनकम फॉर कैपिटल प्रिजर्वेशन, तीनों को डालिए। कितना डालना है रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखिए, रिटर्न्स को मत चेस कीजिए। आप अभी क्या कर रहे हो, गोल्ड आज गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं बिकॉज गोल्ड के रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, और ये हमारी गलती है। कल इक्विटी वापस अच्छा करेगा, सब वापस इक्विटी की तरफ भागेंगे और वापस वो गलती होगी। आप सिर्फ अपने गोल्स के हिसाब से, अपने टाइम होराइजन के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से गोल बेस्ड प्लानिंग कीजिए, रिटर्न्स को मत चेस कीजिए। जब भी दुनिया में अनसर्टिनिटी होती है गोल्ड अच्छा करता है, और जब सर्टिनिटी होती है तब इक्विटी अच्छा करता है। इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आई होप सब लोग समझे। एसेट एलोकेशन का मतलब ये होता है जब एक अच्छा नहीं कर रहा ना तो दूसरा अच्छा कर लेता है, और दूसरा अच्छा नहीं कर रहा ना तो तीसरा अच्छा कर लेता है। इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। क्रिकेट टीम भी इसी तरीके से फॉर्म होती है, जब विराट कोहली अच्छा नहीं करता तो दूसरा प्लेयर संभाल लेता है। अगर सारे एसेट क्लास एक टाइम पे अच्छा करे और एक टाइम पे खराब करे, उसको एसेट एलोकेशन नहीं बोलते। गोल्ड इज अ गुड पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। आज इक्विटी नहीं अच्छा करा तो गोल्ड ने बचा लिया, कल गोल्ड अच्छा नहीं करेगा तब इक्विटी अच्छा कर लेगा, एंड दैट्स व्हाट यू मीन बाय एसेट एलोकेशन। सो प्लीज रिप्लेस मत कीजिए, इट इज पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन। एंड इंडियंस के पास वैसे ही बहुत गोल्ड है अपने पास, तो आइडली और डालने की जरूरत नहीं है। आप किसी के घर के में जाइए, पूछिए कितना गोल्ड है, एटलीस्ट 30-40% सबकी सेविंग्स गोल्ड के अंदर ही है। यस अमित जी, अनदर क्वेश्चन जो बहुत सारे इन्वेस्टर पूछे हैं, एंड आई थिंक कि अभी सबके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का भी एक शायद हैबिट सबका बिल्ड हो गया है। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट हैबिट ओनली, कि अगर मैं अभी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट का ही स्टॉक, जो अच्छा स्टॉक है और जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी रहते हैं, वो अगर डिस्काउंटेड रेट पे मेरे को मिल रहा है 30%, 40%, 20%, so why should I pick a mutual fund rather going directly into equity market? ये बात बहुत सही पूछी है। देखो क्या होता है ना, जब भी इंसान के पास टाइम होता है ना तो दिमाग में बहुत आइडियाज आते हैं। एक्चुअली पता है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जहां पे ना मेरा बेटा भी पॉसिबल है कि वो, उसको आज जूम आता है और वो टेक्नोलॉजी मुझसे आगे निकल गया। एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, 8 साल का है, वो भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है और वो भी कोई रैंडम तुक के शेयर खरीद सकता है। और हो सकता है उसने कोई भी शेयर खरीद ली हो ना, 1 साल बाद उसके रिटर्न्स मेरे म्यूचुअल फंड से अच्छे हो सकते हैं। और वो बोलेगा पापा ये फंड मैनेजर्स इतनी पढ़ाई करते हैं, उनसे स्मार्ट तो मैं हूं, मेरे स्टॉक्स देखो उनसे बेटर रिटर्न बनाए हैं। मैंने आपको वही समझाने की कोशिश की, प्रोसेस और आउटकम को कनेक्ट मत कीजिए। हमें पता है कभी कभी क्या लगता है, अगर आउटकम अच्छी है ना तो हमें लगता है हम बहुत विद्वान हैं, और हम आउटकम के बेसिस पे अपने आप को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि हम समझदार हैं कि नहीं है। आज काफी लोग को लग रहा है कि मैंने एक स्टॉक खरीद लिया और वो स्टॉक बढ़ गया, तो वो अपने आप को एट्रीब्यूट कर रहा है कि मेरी नॉलेज की वजह से है। पर उसको अगर आप ऑनेस्टली पूछोगे ना कंपनी के बारे में, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सब लोग आज रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैं उनको बोलूं ना 5 मिनट रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करके दिखा दे, उनको ये नहीं पता जामनगर फैक्ट्री में बेसिकली रिलायंस करता क्या है, वो ऑयल आता कहां से है, और वो ऑयल बेसिकली ऑयल के प्रोडक्ट्स बनते कौन से हैं, बिकॉज रिलायंस के तो पेट्रोल पंप है नहीं, तो ऑयल का करते क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आती है, उनका ऑडिटर कौन है, उनके पास डेट लेवल कितना है। लोग बोलते हैं 5G में आएगा, कोई मुझे 2 मिनट 5G समझा के दिखा दे 5G होता क्या है। इनको कुछ भी नहीं पता कंपनी के बारे में, सिर्फ उनको इतना पता है कि ट्रेड खरीद लो, किसी ने बोल दिया ये स्टॉक बढ़ जाएगा। इसको सिर्फ ये बोलते हैं कि आप अपनी किस्मत आजमा रहे हो, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को समझिए। जब मैं म्यूचुअल फंड के रूप में आपको पैसा एडवाइस करता हूं, देखो एक बात आप समझिए, जब आप अपना पैसा एक कंपनी में लगाते हो ना, वो कंपनी कैसा करेगी उस पर डिसाइड करेगा आपका वेल्थ क्रिएट होगा कि नहीं होगा। म्यूचुअल फंड आपका पैसा डाइवर्सिफाई करता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, डीएसपी इक्विटी फंड, इसका पैसा फाइनेंशियल्स में है, एनबीएफसीज में है, ऑटोमोबाइल्स में है, टेलीकॉम में है, आईटी में है, इसके पास कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी है, डाइवर्सिफाई कर लिया है, फर्टिलाइजर्स में है। इट इज योर मनी इज डाइवर्सिफाइड। जितना आप डाइवर्सिफाई करोगे अच्छी कंपनीज में, आपके पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस उतने बढ़ जाते हैं, आपका रिस्क भी कम हो जाता है, आपकी रिटर्न्स रिस्क भी अच्छा मैनेज हो जाता है और रिटर्न्स भी अच्छे बन जाते हैं। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, फंड मैनेजर, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो भगवान है, बट उनका होल एंड सोल जॉब यही है। वो पिछले 20 सालों से यही काम करते हैं, मार्केट में अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनके पास पूरी टीम ऑफ एनालिस्ट होती है। हर एक एनालिस्ट पिछले 15-15 साल से एक सेक्टर को देखता है,
वो उनके मैनेजमेंट से मिलता है, उनकी कंपनीज देखकर आया है, उनकी हर एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है ना, वो हर 2-2 घंटा उनकी पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनता है कि ये जो बंदा बोल रहा है कि मैं करूंगा फ्यूचर में, क्या सही में करेगा या नहीं करेगा, बैलेंस शीट पे कोई फ्रॉड तो नहीं है। कितनी सारी एनालिसिस लगती है टू डिसाइड कि मैं वो स्टॉक में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं। और एक और ब्यूटी देखिए जो म्यूचुअल फंड का एडवांटेज है, जब भी आप कोई स्टॉक बाइंग सेलिंग करते हो ना, कोई ना शॉर्ट टर्म टैक्स लगता है ना लॉन्ग टर्म टैक्स लगता है, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड के अंदर ही हो रहा है। बहुत सिंपल लॉजिक है। जो चीज आप आउटसोर्स कर सकते हो, कोई समझदार बंदे को आउटसोर्स करो ना। जस्ट बिकॉज आपका कोई स्टॉक में आपका रिटर्न 30% बन गया, इसका मतलब आप नहीं, आप समझदार हो, आपकी सिर्फ किस्मत ने आपका साथ दिया है। कल जिस दिन किस्मत साथ नहीं देगी ना, सड़क पे आ जाओगे। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं कि सड़क पे आ जाओगे, बट दैट्स अ रियलिटी। मैंने लोग देखे हैं ऐसे आते हुए। अमित जी, कुछ सीनियर सिटीजन पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पर है, तो आपका एक एग्जांपल था कि अगर टाइम कम है तो इक्विटी में उतना कंपाउंडिंग आप कर नहीं पाओगे, सो दे वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी आफ्टर गिविंग दिस एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको अपने घर का एग्जांपल दूंगा, बिकॉज माय मदर इज आल्सो सीनियर सिटीजन, शी इज 65 इयर्स ओल्ड। उनका आज मैं कॉर्पस देखूं तो उनका अप्रोक्सीमेटली 35% पैसा इक्विटी में है। उनके 2 बच्चे हैं, एक मैं और मेरे एक भाई। द आइडिया इज, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ छोटी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है और रिस्क उतना ही लो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी मदर का 35 है तो आपको भी 35 ऐसा कुछ करना है। वो डिपेंड करता है आपका वेल्थ कितना है, आपका कॉर्पस क्या है और आपके गोल्स कितने हैं। तो बेसिकली थोड़ा बहुत तो निवेश करो, बिकॉज जिंदगी लंबी होती है। ओके, और आपको लंबे दौर के लिए आपको चाहिए कि इक्विटी आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे। यस, आपके पास ज्यादा फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, पर थोड़ा पैसा इक्विटी में भी होना चाहिए। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम बच्चों को इनहेरिटेंस भी देते हैं। जब हम गुजर जाते हैं तो हम अपने बच्चों को इनहेरिटेंस देते हैं। इनहेरिटेंस जब हम उनको रियल एस्टेट दे सकते हैं, गोल्ड दे सकते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि हम अपने बच्चों को इक्विटी म्यूचुअल फंड भी इनहेरिटेंस दे सकते हैं? इनफैक्ट सबसे बेस्ट चीज जो इनहेरिटेंस में जो बच्चों को देनी चाहिए ना, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। बिकॉज रियल एस्टेट को देने में कितनी तकलीफें होती हैं। गोल्ड टेक्निकली दे सकते हो, अच्छी बात है, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनहेरिटेंस में सबसे अच्छी बात है, सिर्फ आपको यूनिट्स ट्रांसफर करने हैं। सो टेक्निकली 2 चीज के लिए देखिए, एक तो जिंदगी लंबी होती है, दूसरी बात आप बच्चों को इनहेरिटेंस भी दे सकते हो। बट उतना ही रिस्क लीजिए जिसके साथ आप रात को चैन की नींद सो सको। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप उतना ही रिस्क लीजिए, उतना ही इक्विटी में डालिए कि इक्विटी मार्केट में जब 20% 30% जब मार्केट गिरती है ना, आपका बीपी हाई ना हो, आपको चैन की नींद आए, आपको पता है कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। उतना ही रिस्क लीजिए। आप किसी की मेरे सुनने के ऊपर ज्यादा इक्विटी में मत डालिए। उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हो। और यहां पे आपका एडवाइजर काम आएगा, आपके साथ डिस्कस करेगा। आप उसको अपने हालात बताइए, अपने बारे में बताइए, बिकॉज हर एक बंदा बहुत डिफरेंट है। कोई बंदा ज्यादा सेंसिटिव होता है लॉस को लेके, कोई बंदा ठीक ठाक होता है, कोई बंदे के पास कॉर्पस ज्यादा होता है, किसी का कॉर्पस कम होता है। तो बेसिकली आपका एडवाइजर आपके साथ जब आप डिस्कस करोगे, अपने सारे हालात बताओगे, अपने पूरा सिनेरियो समझाओगे, ओके, और अपनी मेडिकल कंडीशन सब कुछ डिस्कस करोगे, आपका एडवाइजर आपको समझा पाएगा कि कितना बहुत आप इक्विटी में डाल सकते हो, कौन से फंड्स में डाल सकते हो, कितना सेफ रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये बेसिकली एक यूनिक प्लान बनता है, एंड ऑल ऑफ अस आर यूनिक, और आपके हिसाब से आपका प्लान बनेगा। परफेक्ट सर। तो सर बाकी जितने भी सवाल है, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन योर प्रेजेंटेशन ओनली। सो थैंक्स टू entire DSP team, thanks to both of you, and thanks to all the participants for spending 1 hour 10 minutes with us for this session. So anything from your side, sir? Concluding remarks. Perfect. देखो, मैं एक ही रिमार्क दूंगा। बहुत सिंपल चीज है। पोर्टफोलियो मैंने, आई थिंक मैं वही रिपीट करूंगा जो रिपीट कर रहा हूं। पोर्टफोलियो जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखो। ज्यादा नॉइज से दूर रहो। जितना आप नॉइज के साथ रहोगे वो आपको करप्ट कर देगा आपका माइंड। ये चीजें दुनिया में लगी रहेंगी। उतना ही रिस्क लो जितना आप ले सकते हो, बिकॉज आप जरूरत से ज्यादा रिस्क लोगे तब भी प्रॉब्लम है, आप घबरा जाओगे। और कम रिस्क लोगे, प्रॉब्लम क्या है, ये भारी पड़ेगा लॉन्ग टर्म में।
समझो मैं आज कहता हूं मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, सारा पैसा एफडी में रख देता हूं, मुझे लॉन्ग टर्म में भारी पड़ेगा, बिकॉज जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरा बेटा पूछेगा पापा आपने इतना क्यों नहीं जोड़ा कि मेरे को आप हायर एजुकेशन के लिए क्यों नहीं भेज सकते। मेरी वाइफ पूछेगी कि हमने इतना क्यों नहीं जोड़ा कि हम रिटायरमेंट ठीक से क्यों नहीं रह पा रहे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी जिंदगी में सेफ खेल रहा था। जब आपके पास उम्र है तो प्लीज रिस्क लीजिए, कुछ नहीं होगा, और रिस्क उतना ही लीजिए जो आपके बिहेवियर के हिसाब से सही है। मैं नहीं कह रहा हूं ज्यादा रिस्क लीजिए, उतना ही रिस्क लीजिए जो आपका बिहेवियर आपको अलाउ करता है, उसके हिसाब से लीजिए। बट इक्विटी का रिस्क समझिए, रिस्क कभी भी टाला नहीं जा सकता, रिस्क से बचा नहीं जा सकता, रिस्क को आप पोस्टपोन कर सकते हो। तो प्लीज चीज समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अपने एडवाइजर से जितने क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछिए, बहुत क्वेश्चन पूछिए, और सारे आंसर्स समझने के बाद जब पूरी संतुष्टि हो जाती है तब इन्वेस्ट कीजिए। यस, थैंक यू कौशिक भाई, एंड थैंक यू एनजे टीम, हमें मौका दिया आपने ऑनेस्टली इतने सारे आपके क्लाइंट्स के साथ और एडवाइजर्स के साथ जुड़ने का। ये हमारा बेसिकली सौभाग्य है कि हम अपनी बात आपके सामने रख पाए थे। थैंक यू। Thank you. Thanks to all of you. Thank you. So we are concluding this session. Thanks for spending your time. Thanks to DSP.